Hello learners, in today's video we are going to do poem by Christina Rossetti, Remembrance. Christina Rossetti was a Victorian poet who was known for her deeply spiritual and often melancholy words. She was associated with pre-Raphaelite brotherhood which include her brother Date Gabriel Rossetti. So Christina Rossetti जो है, she was a very famous poet from Victorian age, and of course she was the sister of Date Gabriel Rossetti, and both of them, Christina Rossetti and Date Gabriel Rossetti, was associated with pre-Raphaelite Brotherhood movement. Okay, so Christina Rossetti की जो poems हैं, they are known for their spirituality and melancholy, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली लिखती थी एंड सैडनेस पे बेस्ड होते थे इनके जो भी पोएम्स होते थे. Her works combine religious devotion, reflection on mortality, love and resignation. So इनके जो works थे, it was about religious devotion, mortality, love and resignation. Now we come to her famous work, which are Goblin Market, Remember, When I'm Dead, and My Dearest. Now we come to about poem part. This poem was written in 1849 and it was published in 1862 in her collection Goblin Market and Other Poems. This poem was written in Italian sonnet form. 14 line की ये poem है. This poem, often referred as Remembrance, is actually titled Remember. इन्होंने इस poem को actually Remember title किया था, but after some time it often refers as Remembrance. It was written around when Rossetti was 19-year-old. Rossetti जब 19-year-old थी तब इन्होंने ये poem लिखी थी. And Goblin Market and Other Poem was her first major volume and established her reputation as poet. And this collection of a poem, which is Goblin Market and Other Poems, ये जो book है, जो collection है poems का उनके, ये उनकी पहली major published book collection थी जिन्होंने उनका एक reputation set किया as a poet. The poem explored the delicate balance between cherishing the memory of someone and letting go to find peace. It reflects the speaker's feeling about past relationship or loved one. So this poem is a balance, fine balance between कि कैसे आप किसी की मेमोरी को चेयर करते हो, कैसे किसी की मेमोरी को याद करते हो, और एट द सेम टाइम यू आर लेटिंग दोज मेमोरी गो एंड लेटिंग दैट पर्सन गो, कि आपका जो सराउंडिंग है उसमें पीस बना रहे. ओके, ये जो पोएम है इसमें स्पीकर अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही है. दिस इज़ द पोएम. इसमें 14 लाइन्स है और इसको इटालियन सोनेट फॉर्म में लिखा है उन्होंने. आई विल एक्सप्लेन यू इट बाय स्टेंजा, मतलब हम 4 लाइन को एक्सप्लेन करेंगे. So the first 4 lines, remember me when I'm gone away, gone far away into the silent land, when you can no more hold me by the hand, nor I half turn to go yet turning stay. In this line, she was telling कि जब मैं चली जाऊंगी in the silent land से उनका मतलब है death. Okay, she was referring to death. तो वो कह रही हैं कि अगर मैं जब चली जाऊंगी, death लेके जाएगा मुझे, then you are not able to hold my hand anymore. तब मेरा हाथ नहीं पकड़ सकोगे तुम. And I wouldn't be able to hesitate and stay with you even when I want to. और मैं खुद भी चाहूँगी अगर तुम्हारे साथ रहना, तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती. Second stanza, remember me when no more day by day you tell me of our future that you planned. Only remember me, you understand it will be late to console then or pray. In this line, she was talking about that when I'm gone, you wouldn't be able to talk to me daily about the future we hope for. जब मैं चली जाऊंगी तो तुम उस फ्यूचर के बारे में मुझसे बात नहीं कर सकते जिसके बारे में हमने सोच रखा है, मतलब जिस फ्यूचर के बारे में हमने सोचा हुआ है उसके बारे में you cannot talk to me anymore because I am gone, I am died. So just keep me in your memory because by then it will too late to change anything or pray for me. So उस टाइम पे जब तुम मेरे से बात नहीं कर सकते, मेरे हाथ नहीं पकड़ सकते, तो तभी मुझे तुम अपने प्रेयर्स में याद रखना, अपने मेमोरीज़ में याद रखना, क्योंकि तब
कुछ भी चेंज करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी, तो आप सिर्फ मेरे लिए प्रे करना. ओके. देन, yet if you should forget me for a while, and afterwards remember, do not grieve. For if the darkness and corruption leave a vestige of the thoughts that once I had. Now, in this four lines, she was trying to tell you, if you forget me for a time and remember later, don't feel guilty. कि अगर तुम मुझे कुछ टाइम के लिए भूल जाओ और बाद में फिर से मैं तुम्हें याद आऊँ, तो गिल्ट में मत होना, गिल्ट मत रखना. शी अंडरस्टैंड दैट डेथ ब्रिंग्स सॉरो, मीन्स darkness and corruption, but if any small trace of her thoughts or memory remain, that's enough. She was telling कि शी अंडरस्टैंड कि जब डेथ हो जाती है किसी की, तो उसकी वजह से बहुत सारा डार्कनेस, करप्शन, सॉरो हमारे अंदर आ जाता है. पर अगर उनके 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 लाइफ का थोड़ा सा भी थॉट या मेमोरी आपके पास रह गया है, तो वो भी उनके लिए काफ़ी है. देन इन द लास्ट टू लाइन, बेटर बाय फार you should forget and smile than that you should remember and be sad. She was telling she would rather be the person forget her if remembering only caused sadness. Their happiness is more important than keeping her memory alive. वो कह रही हैं कि वो ऐसी इंसान नहीं बनना चाहती हैं जिनको याद करके, जिनके डेथ के बाद उनको याद करके आपको सैड फील हो. वो ऐसी मेमोरीज आपके अंदर छोड़ के जाना चाहती हैं, आपके पास छोड़ के जाना चाहती हैं, जिनको सोचने पे भी आप खुश हो जाओ, आप वापस से खुश हो जाओ उनकी मेमोरीज को याद करके. सो हियर शी वैल्यूज देयर पीस ऑफ माइंड मोर देन द बीइंग रिमेंबर्ड फॉर एवर. यहाँ पे वो उनके पीस ऑफ माइंड को, जो भी उनका बिलवेड है और जिनको भी वो रेफर कर रही हैं इस पोएम को, शी वॉज ट्राइंग टू बी द रीज़न ऑफ देयर पीस ऑफ माइंड, कि उनके माइंड का पीस बना रहे, या सिवाय इसके कि उनको हमेशा दुख के साथ याद रखा जाए. नाउ इफ वी कम टू द थीम पार्ट, लव एंड मेमोरी, ऑफ कोर्स शी वॉज टॉकिंग अबाउट कि जिनको वो प्यार करती हैं वो उनसे दूर जा रही हैं. एंड शी टॉक अबाउट द मेमोरी पार्ट, कि कैसे उनके डेथ के बाद उनकी अच्छी मेमोरी को याद रखा जाए, जिससे जो भी उनका बिलवेड है, जो भी पर्सन उनको याद कर रहे हैं, वो उस मेमोरी को रिवाइंड करके खुश हों. डेथ एंड सेपरेशन, शी वॉज टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन, कि कैसे डेथ जो है वो उनको उनके बिलवेड से सेपरेट कर रहा है. एंड नाउ her beloved cannot hold her hands because she died. Acceptance and peace, she accept it, कि कैसे लोगों के जाने के बाद लोग धीरे धीरे उनको भूल जाते हैं, बट शी इज़ ओके विद दैट, कि हाँ ठीक है आप मुझे भूल जाओ, इट्स ओके, आपको गिल्ट में नहीं रहना है. एंड इफ़ यू मेमोराइज मी फॉर सम टाइम, तो आपको बस मेरी अच्छी मेमोरीज याद रखनी है, जिससे आपके माइंड का जो पीस है वो बना रहे. यू डोंट हैव टू बी सैड अबाउट मी. द नेचर ऑफ ग्रीफ, शी वॉज टॉकिंग अबाउट कि जो नेचर होता है ग्रीफ का, सैडनेस का, उसके बारे में बात करी, कि कैसे लोग सैड होते हैं एंड उस टाइम पे दे स्टार्ट रिवाइंडिंग, कि कैसे वो कुछ टाइम के लिए जिस पर्सन से दूर हुए हैं उनको भूल चुके थे, और उस चीज़ को सोच के वो वापस से दुखी होते हैं, वो गिल्ट में चले जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ द नेचर ऑफ ग्रीफ. द लास्ट पॉइंट, सेल्फलेसनेस एंड लव, शी इज़ वेरी सेल्फलेस इन दिस पोएम, बिकॉज शी वॉज टॉकिंग अबाउट कि कैसे आप मुझे भूल जाओ, इट्स ओके, इट्स वेरी फाइन, क्योंकि अगर आप मुझे भूल के आपके मन को खुशी मिल रही है, तो आप खुश रहो. एंड शी वॉज ऑल्सो टॉकिंग कि अगर आप मेरी कुछ मेमोरीज़ रखना चाहते हो अपने पास, तो मेरी अच्छी मेमोरीज़ रखो, जिनको याद करके आप खुश हो, ना कि मुझे याद करने के बाद आपको सैड फील हो. एंड दिस इज़ द वे शी वॉज टॉकिंग अबाउट लव, कि कैसे जो प्यार होता है वो भी इंसान को अच्छी मेमोरीज देता है, ना कि बुरी मेमोरीज. सो दिस इज़ ऑल अबाउट Remembrance, poem by Christina Rossetti. If you have any query, any doubt about this topic or any other topic, you can comment below. And have a nice day.